हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स करे थे जिसमें वो केमिकल 1 एंड केमिकल 2 से रिलेटेड था और उसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो इसमें भी वही हमने यूनियन वाला जो फॉर्मूला किया था उसी से हम करेंगे। एंड व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ फॉर्मूला? यूनियन ऑफ द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ elements in x union y is equal to number of element in x plus number of element in y and minus number of element in x intersection y। तो ये फॉर्मूला को हम यूज करके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है 1 2 3 8 तक वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हमसे। that number of element in x is equal to what? 17 and number of element in y is equal to 23 and number of element in x union y is equal to 38 and we have to find that number of element in x intersection y. Okay, so we have that number of element in x is equal to what? Is equal to 17 and number of element in y is equal to 23 and number of element in x union y is equal to 38 and we have to find that number of element in x intersection y. Okay, so हम फॉर्मूला में पुट करते हैं that number of element in x union y is equal to number of element in x plus number of element in y and minus number of element in x intersection y. Okay, and we have that number of element in x union y is equal to 38 and number of element in x is equal to 17 and number of element in y is equal to 23 and we have to find number of element in x intersection y. Okay, so what is this? That 38 minus 40 is equal to minus 9 and number of element in x intersection y. Okay, so this is equal to what? This is equal to nothing but minus 2 is equal to minus number of element in x intersection y. Okay, so number of element in x intersection y is equal to what? Is equal to 2. Okay, so now we will move to the next question and what says that number of element if x and y are two sets such that x union y has 18 element and x has 8 element and y has 15 element and we have to find that number of element in x intersection y. Okay, so we have that number of element in x union y is equal to 18 and number of element in x is equal to 8 and number of element in y is equal to what? Is equal to 15 and we have to find that number of element in x intersection y. So again we will apply the formula and the formula is number of element in x union y is equal to number of element in x plus number of element in y and minus number of element in x intersection y. Okay, so we have that there are 18 elements and number of element in x are 8 and number of element in y are 15 and this is number of element in x intersection y. So what we will get? That we will get 18 minus 23 is equal to number of element in x intersection y and this is equal to what? This is equal to nothing but minus 5. Okay, so number of element in x intersection y is equal to what? Is equal to 5. So there are 5 number of elements in x intersection y. तो दैट अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे सो वेन डायग्राम में हमें ये क्या कहेगा कि इसका क्या मतलब है कि सपोज देयर इज सेट x and there is set y. Okay, and there is universal set u. Okay, so only x has these region. Okay,
So in this region there are only number of elements which in X, and in this region there are only elements in region Y. Okay, so the region which is left here, so this region is what? This region is some area of set X and some area of set Y. So this common region is what? This common region is X intersection Y. Okay, so इसी तरीके से होता है ये x इंटरसेक्शन y, और इसी को हम निकाल रहे हैं. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल. ओके, सो कितने लोग हैं यहाँ पर? 400 पीपल है. 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश. तो हो, एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? ओके, सो देयर इज अ वर्ड बोथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पीपल विच स्पीक इन हिंदी, देयर आर 250 पीपल. ओके, एंड नंबर ऑफ पीपल और पर्सन who can speak in English, and there are 200 person. Okay, and in a group there are 400 people. इसका क्या मतलब है? अब एक ग्रुप में अगर 400 लोग हैं तो ये 400 लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, या तो वो हिंदी बोलेंगे या तो वो इंग्लिश बोलेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ पर्सन विच स्पीक्स इन हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 400. Okay, so there are 400 person which is either speak in English or speak in Hindi. Okay. Okay, so अब यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने यूज करा हुआ है. Okay, sorry, so this is union not intersection. Okay, so there are number of person which speak in English is 200 person and which speak either in Hindi or in English is equal to 400. अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? हमें वो लोगों को फाइंड करना है they can be speak in both language. Okay, हिंदी एंड इंग्लिश. तो बोथ लैंग्वेज का हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने वेन डायग्राम से क्या बताया था कि दैट मान लेते हैं इतने लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और इतने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या है? जो ये इतने लोग हैं, ये रीजन के लोग, ये सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलते. और जो ये इतने लोग हैं इस रीजन के, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इंग्लिश ही बोलते हैं. तो ये वाला रीजन कौन सा रीजन है? ये वो वाला रीजन है, ये वाला, जिसमें क्या आ रहा है? कुछ लोग हिंदी भी बोल रहे हैं और कुछ लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं. तो इसका मतलब ये वो रीजन है जिसमें वो लोग आ रहे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं. और रीजन कौन सा रीजन होता है? ये इंटरसेक्शन वाला रीजन होता है. ओके, तो जब भी ये वर्ड बोथ यूज होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है किसके अंदर? H इंटरसेक्शन E के अंदर. ओके, सो अब हम आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये क्या होगा. ओके, सो फॉर्मूला लगाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट in H union E is equal to what? Number of element in H plus number of element in E and minus number of element in H intersection E. Okay, so H union E is what? Is 400 and number of H is what? 250 and number of in E is equal to 200, and we have to find that which speak in Hindi as well as in English. Okay, so after calculation this will become 400 minus 450. Okay, so this is equal to what? 400 minus 200 450 is 450 is equal to number of element in H intersection E. That means this is equal to what? This is equal to actually 50 is equal to an H intersection E. That means those person which can those person who can speak
in English as well as in Hindi, there are 50 such persons. Okay, so now let's move to the next question. And next question हमारे पास ये कहता है that in if S and T are two sets, okay, S and T are two sets, ऐसे दो sets हैं जो कि क्या करते हैं, S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T is equal to 11 elements. So how many element does S union T? तो ये तो easy ही है. Okay, so number of element in S is equal to what? Is equal to 21 and number of element in T is equal to what? Is 32 and number of element in S intersection T is equal to what? Is equal to 11 and we have to find that number of element in S union T. Okay, so just हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी. ओके, एंड एस यूनियन टी इज व्हाट, हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना ही है. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू व्हाट इज 21 and plus number of element in T is 32 and minus 11. So what is this, 353 minus 11 and this is equal to 42. Okay, so number of element in S union T is equal to 42. Okay, so now let's move to the next question. And next question क्या कहता है हमारे पास, that if x and y are two sets, क्या है कि x and y क्या है, ऐसे दो sets हैं that x has 40 elements and union has 60 elements and intersection has 10 elements. So we have to find in y. Okay, so number of element in x is equal to 40 and number of element in x union y is equal to what, 60 and number of element in x intersection y is equal to what, 10 and we have to find that number of element in y. Okay, so simply we apply the formula and formula में क्या होगा, simply that n x union y is equal to number of element in x plus number of element in y and minus number of element in x intersection y. Okay, so x union y has a 60 element and x has 40 element and y we don't know, we have to calculate that number of element in y and number of element in x intersection y is equal to 10. Okay, so ये कितना हो गया, that 60 minus 40 minus 10 is what, 30 and 60 minus 30 is what, again 30. So number of element in y is equal to what, there are 30 number of element in y. Okay, so now we move to the next question. So next question क्या कह रहा है, that we have okay, so in a group of 70 people, कौन सा ग्रुप है ये, एक ग्रुप है जिसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, 70 पीपल है. ओके, 37 like coffee and 52 like tea, each person like at least one of the two drink. यहाँ पर सिर्फ दो ही ड्रिंक की बात हो रही है, एक हो रही है किसकी, कॉफ़ी की और एक हो रही है किसकी, टी की. ठीक है, अब यहाँ पर जो एक ग्रुप में लोग दे रखे हैं वो 70 है, तो ये या तो हो सकता है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाए या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कॉफ़ी और टी दोनों का यूनियन दे रखा. तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने एक लाइन यूज करा है जो कि क्या बोल रहा है, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक. क्या मतलब है इसका, कि ये जो इस ग्रुप में जो ये 70 लोग हैं, इन
70 लोगों में हर एक पर्सन, ईच पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, कि दोनों में से एक तो पक्का वो पसंद कर ही रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा 70 के 70 लोग हैं, ये हमारा यूनियन बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ सब लोग जो है वो या तो कॉफी लाइक कर रहे हैं या तो टी लाइक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लाइक तो कर ही रहे हैं। अब हमारे पास कॉफी का कितना दे रखा है, कॉफी का 37 है, ओके, एंड 52 किसका है, टी का है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, दैट हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, हमें वो निकालना है कि जो दोनों को पसंद करते हैं। तो बोथ वर्ड का मतलब ही क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। तो हमें वो सेट निकालना है जिसके अंदर कॉफी एंड टी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। सो अगेन हम अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू number of element in C plus number of element in T and minus number of element in C intersection T. Okay, so C union T is 70 and coffee like करने वाले कितने हैं 37 and tea like करने वाले कितने हैं 52 and minus we have to calculate that which those person who like coffee and tea both. Okay, so 70 माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 and 5 3 89 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, सो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, दैट 19। सो द पर्सन हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी आर 19। ओके, सो देयर आर 19 person who like both coffee and tea. Okay, so now next, okay, तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, दैट कि नंबर ऑफ इन अ ग्रुप देयर आर 65 people, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक क्रिकेट टेनिस। तो सॉरी 10 लाइक बोथ, तो जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो ऐसे कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, ठीक है। एंड ग्रुप में कितने लोग हैं, टोटल 65 लोग हैं, तो दैट मीन्स सी यूनियन टी हमारे पास कितना दे रखा है 65। ओके, एंड वो लोग जो दोनों को लाइक करते हैं यानी कि सी इंटरसेक्शन टी, वो भी हमारे पास कितना दे रखा है 10 ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये कितना है 10 है। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी कि टेनिस पसंद करता हो लेकिन क्रिकेट नहीं। तो यानी कि क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी कि सिर्फ टेनिस को लाइक कर रहा है लेकिन क्रिकेट को नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स माइनस सी, कि वो क्रिकेट को पसंद ही नहीं कर रहा है, इसलिए माइनस सी ये निकालना है। और क्या निकालना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, की टेनिस कितने पसंद करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास सी भी दे रखा है, टी हमें निकालना है, यूनियन भी दे रखा है और इंटरसेक्शन भी दे रखा है, तो ये तो हमारा सिंपली फॉर्मूले से यूज हो जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, यूनियन में कितना है 75 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट कितना पसंद करते हैं 40, एंड टेनिस के लिए हमें तो निकालना ही है ये, एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी विच इज 10। सो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 65 एंड माइनस 40 माइनस 10 इज 30, सो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, and this is equal to what, 35. so 35 person who like tennis, तो ये हमारा टी आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे क्या कह रहा है कि वो टेनिस पसंद कर रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद कर रहा है। तो हम वेन डायग्राम में देख लेते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर टेनिस पसंद करने वाले इतने लोग हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले इतने लोग हैं। तो अगर मैं टी को सिर्फ लिखना चाहूँ तो मैं टी को कैसे लिख सकती हूँ, दैट टी इज इक्वल टू वॉट, दिस ये वाला पोर्शन और ये वाला कैसे आएगा पोर्शन, कि इस पूरे टी में से हमने ये सी वाला हिस्सा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो टी को हम कैसे लिखेंगे, टी माइनस सी। ओके,
एंड फिर उसके बाद इसको हम किसके साथ इंक्लूड करेंगे, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, तो इससे मेरा पूरा टी बन जाएगा। दैट मीन्स दिस सेट एंड यूनियन विद दिस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। ओके, दिस सेट एंड टी इंटरसेक्शन सी। अब क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन और ये जो आ रहा है, ये दोनों पोर्शन क्या है, डिसजॉइंट है। तो जब भी डिसजॉइंट सेट रहते हैं तो ये जो मेरा यूनियन है वो फॉर्मूले में क्या बन जाता है, सिंपली प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ओवरलैप नहीं हो रहा या फिर दोबारा हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारा यूनियन जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, अगर मैं ये जो टी है इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी, सो आई कैन राइट दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, ओके, sorry, number of element in T is equal to number of element in T is equal to number of element in T minus C, and this union will become plus, and number of element in T intersection C. Okay, and number of T is what, this is 35, and we have to find that number of element in T minus C, and number of element in T intersection is C is what, this is actually this 10. okay, so ये कितना बन गया, 35 minus 10 is equal to number of element in T minus C. That means those person who like tennis but not cricket is equal to 25. So there are 25 person who like only tennis but not cricket. Okay, so now we move to the next question. Okay, and this is the last question. So ये क्या कह रहा है last question, हम देख लेते हैं ये भी. So in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. So how many speak at least one of these two language? तो ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से कोई एक को पसंद करता ही करता है? तो जो स्पेनिश को लाइक करता है वो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे हैं स्पेनिश को कितना, 20 लोग, 20%. And number of person who speak in French is equal to 50. There are 50% who speak French. Okay, now number of person who speak in Spanish as well as French is equal to 10. Okay, and we have to find that कि वो at least या तो स्पेनिश बोल रहा हो या तो फ्रेंच बोल रहा हो, तो ये हमें निकालना ही है. तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे हम, ठीक है, दैट नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एफ एंड माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ. ओके, सो यूनियन में कितने लोग हैं वो तो हमें निकालना ही है कि ऐसे कितने लोग हैं जो या तो स्पेनिश बोलते हैं या तो फिर वो फ्रेंच बोलते हैं. स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं, फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं, और ये जो दोनों बोलते हैं वो ऐसे कितने लोग हैं, 10 हैं. तो कितना हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट एस यूनियन एफ इज इक्वल टू 70 minus 10 60. Okay, so there are 60 person who can speak in Spanish and as well as in who can speak either in Spanish or in French. Okay, so इस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज 1.6 के सोल्यूशन कर लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.